लेफ्ट करना है, या आप लेफ्ट हो जाइए अगर आपकी नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट हो। द क्लास इज इंपॉर्टेंट और नॉट? Yes, sir. Then, and any other thing is important than the class? बोल रहा हूँ No, sir. अगर वो लोग लेट आए हैं या वो लोग टाइम ज्यादा ले रहे हैं तो आप क्लास को लेफ्ट कर दीजिए, दैट्स इट। अगर आपको लग रहा है दे आर टेकिंग सो मच टाइम, देन लेफ्ट द क्लास, बिकॉज वी ऑल आर वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। और मैंने आपको कई बार बोल दिया है, many times I have already told you that I will not allow a single student after 11:35. I am giving you maximum 5 minutes more, that's it. I will not allow after that. This is my last warning. आप लोगों को टाइम पे आना चाहिए। Anyways, just give me a second to present my screen. Can you see the blank screen? Yes, sir. Very good. Thank you. देखिए मैं आपको जो बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है, नोटेशन होता है, वो ये वाला होता है, डेल अपॉन डेल एक्स। अगर आप इसके अलावा डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल टी, अगर आप इसके अलावा कोई और सिंबल काम में ले रहे हैं, कोई और नोटेशन काम में ले रहे हैं, तो उसका कुछ मतलब अलग होता है। अगर आप ये वाला काम में ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और है, अगर आप ये वाला काम में ले रहे हैं तो इसका मतलब कुछ और है, अगर आप ये वाला काम में ले रहे हैं तो इसका मतलब भी कुछ और है। तो आप थोड़ा सा राइट नोटेशंस को यूज किया कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिसने भी गलती की है नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए, कीप इन माइंड। ओके, so in last class we were talking about limit and continuity of functions of two variable, and we discussed about the limit of functions of two variable. One question we have done already, this question we have done, और मैं आपको बता रहा था कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन में और मे नॉट एग्जिस्ट, राइट? तो मैं आपको आज ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। And for existence of any limit of function of two variable, the value of the limit must be same for each and every path you are taking. If for each and every path you are taking the value of the limit is same, then the limit exists, and the value of the limit will be the answer of that evaluation. If it is not, then limit doesn't exist. For example, this is the question. Actually ये क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है, ये क्वेश्चन कुछ यूं है, लिमिट x is tending to 0, y is tending to 0, x square y divided by x raised to the power 4 plus y square. ये वाला क्वेश्चन कुछ यूं है, limit x tending to 0, y tending to 0, x square y divided by x raised to the power 4 plus y square. तो आप देख सकते हैं x and y both are tending to 0. For this particular question, I am taking the path y is equal to mx square. For example, हमने y is equal to mx square पाथ ले लिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन करवाया था उसमें अच्छे से समझाया था कि हर एक पाथ के लिए अगर वैल्यू सेम आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर सेम नहीं आती है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। So for this question, I am taking the path y is equal to mx square because this is the family of
parabolas passing through origin, we can take this path. So put y is equal to mx square in this question, in this function. तो ये function आपका पूरा x में convert हो जाएगा ऐसे, and limit x tending to 0. Now in numerator there is x raised to the power 4, and in denominator we can take the common of x raised to the power 4. तो x raised to the power 4 नीचे से common ले लिया और x raised to the power 4 ऊपर है, उससे cancel हो गया, तो बचेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 m upon 1 plus m square. And you can see in this term there is no x. In this term there is no x, then there is no need of limit of x. So we can write this whole term as m upon 1 plus m square only, because there is no x. You can see for different values of m, the value of this limit will be different. m के आप जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करते जाओगे, क्योंकि ये m पे डिपेंड कर रहा है. यहाँ पे ये जो लिमिट का इवैल्यूएशन है, इट इज डिपेंडिंग ऑन m, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन x. तो इट इज डिपेंडिंग ऑन m. तो m की जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करते जाओगे, इस इवैल्यूएशन के अलग अलग आंसर आते जाएंगे. इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू mx स्क्वायर में आप m का अलग अलग वैल्यूज लेते जाओगे तो आपको अलग अलग इवैल्यूएशन मिलता जाएगा. बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी लिमिट द वैल्यू विल बी सेम. हियर फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द आंसर विल बी डिफरेंट. देयरफॉर लिमिट डजंट एग्जिस्ट. सिंस द वैल्यू ऑफ लिमिट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ m, therefore limit of given function does not exist. So limit x tending to 0, y tending to 0, x square y upon x raised to the power 4 y, x raised to the power 4 plus y square does not exist. Any question anybody wants to ask? Am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any question anybody wants to ask? No, sir. तो आप देख सकते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल may or may not exist. Okay. Now continuity of functions of two variable. देखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की डेफिनेशन एग्जैक्टली वही वाली है जो 12th क्लास में आपने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की पढ़ी है. मैं आपको 12th वाली डेफिनेशन रिमाइंड करवाता हूं. y is equal to fx, which is a function of one variable, is said to be continuous at a point x is equal to x naught if limit x tending to x naught fx is equal to fx naught. ये डेफिनेशन होती है. सर एक बार रिपीट कीजिएगा. देखिए 12th क्लास में आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे. ये y इज इक्वल टू fx कोई फंक्शन है. दिस इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन. दिस फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x नॉट if limit x tending to x naught fx is equal to fx naught. अब बताइए ये डेफिनेशन पढ़ी है आपने? यस सर. y is equal to fx function, which is a function of one variable, is said to be continuous at x is equal to x naught if limit x tending to x naught fx is equal to fx naught. So this was the definition of continuity of one variable function at x is equal to x naught. Similarly,
This is the definition of continuity of function of two variable at x naught y naught. The formula is same. The function f of xy is said to be continuous at the point x naught y naught if limit x is tending to x naught, y is tending to y naught, fxy is equal to fx naught y naught. बताइए डेफिनेशन सेम है या नहीं है? Yes, sir. यस, वो डेफिनेशन वन वेरिएबल के लिए थी, ये डेफिनेशन दो वेरिएबल के लिए, दैट्स इट. सो अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल fxy a function of two variable fxy is said to be continuous at x naught y naught if limit xy tending to x naught y naught fxy is equal to fx naught y naught. राइट? देखिए इस राइट साइड वाले टर्म का क्या मतलब है? इस राइट साइड वाले टर्म का मतलब है कि फंक्शन fxy की वैल्यू पॉइंट x naught y naught पर, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन fxy एट x naught y naught. और इस लेफ्ट वाले टर्म का क्या मतलब है? इस लेफ्ट वाले टर्म का वही मतलब है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एट x इज इक्वल टू x naught एंड y इज इक्वल टू y naught. तो अगर लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाता है, देन वी विल से द गिवन फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल fxy इज कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट x naught y naught. The definition is clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Can we do the question? Yes, sir. Pretty good. Discuss the continuity of the function, and the function is defined as fxy x square upon under root x square plus y square when x comma y is not equal to 0, and fxy is equal to 2 when x is equal to y is equal to 0 at the origin. तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझिए आप. This function defines in this way. When x and y both are not 0, when x and y is not equal to 0, then function is x square upon under root x square plus y square. And when x and y both are 0, then function is 2. So this is the overall function. And we have to discuss the continuity of this function at the origin. We have to discuss the continuity of this function at the origin. We have to find out whether the given function of two variable is continuous at the origin or not. So question is clear to everyone? Yes, sir. Very good. तो देखिए अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 fxy का वैल्यू f0,0 आ जाता है तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन. इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज x naught y naught is 0 0 here. The point x naught y naught is 0,0 here. So if limit x tending to 0 y tending to 0 fxy is equal to f0,0, then we will say that the given function is continuous at the origin. Agree or not? Yes, sir. Good. तो देखिए सबसे पहले इसका हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है फंक्शन में. क्या गिवन है? देखिए ऑलरेडी गिवन है that function at 0,0 is equal to 2. Am I correct or not? It is Yes, already. sir. And this is RHS. Yes, sir. ये हमारा RHS हो गया. Yes, sir. ये वाला पार्ट हो गया हमारा RHS.
f of 0, 0 is equal to 2। अब हम लेफ्ट साइड का इवैल्यूएशन करेंगे, और लेफ्ट साइड का वैल्यू अगर हर एक पाथ के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और अगर लेफ्ट साइड का वैल्यू हर एक पाथ के लिए सेम आता है और वो सेम दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब उसका आंसर 2 आता है, तो हम कहेंगे द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज नॉट। ठीक है, लेफ्ट साइड को इवैल्यूएट करते हैं। To discuss the continuity of the given function, we evaluate the limit of the function, limit x tending to 0, y tending to 0, x square upon under root x square plus y square। ये हमारा LHS है जिसे हमें सॉल्व करना है। तो वही पुराना स्टाइल, अगर मान लीजिए पहले मैं y0 पुट कर दूं, y का लिमिट पुट कर दूं, तो y0 हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x का मतलब अंडर रूट x स्क्वायर का मतलब हो गया x स्क्वायर अपॉन x, दैट इज x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x, तो हमारा 0 है। तो अगर हम y का लिमिट पहले पुट करते हैं और x का लिमिट बाद में पुट करते हैं तो 0 आ रहा है। यस सर। सिमिलरली अगर हम x का लिमिट पहले पुट करते हैं और y का लिमिट बाद में पुट करते हैं तो भी 0 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। आप पहले x का लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, तो वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो आप पहले x का लिमिट पुट करते हैं, y का बाद में पुट करते हैं तो भी 0 आएगा, पहले y का पुट करते हैं बाद में x का करते हैं तो भी 0 आएगा। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। अगर मैं y इज इक्वल टू mx पाथ ले लेता हूं, mx पाथ ही क्यों लिया मैंने, बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0 एंड y इज टेंडिंग टू 0, so we will take the path which is passing through origin, no doubt। तो मैंने y इज इक्वल टू mx पाथ लिया, y इज इक्वल टू mx पुट किया, पूरा फंक्शन x में कन्वर्ट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये x से ये वाला x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एक x बच गया, लिमिट पुट करने के बाद 0 आ गया। It means if I am taking the path y is equal to mx, which is a family of straight lines passing through origin, the limit will be 0 again। ठीक है, कोई और पाथ लेते हैं। अब हमने लिया y is equal to m x raised to the power m, इन जनरल पाथ ले लिया है। You can choose y is equal to mx square, y is equal to mx cube, y is equal to mx raised to the power 4, any path you can choose, because these all paths are passing through the origin and we can take it, there is no problem। So I am choosing a general path which is passing through the origin, y is equal to mx raised to the power m। Put y is equal to mx raised to the power n in the given function, the function will convert into totally x, limit x tending to 0, अंडर रूट से कॉमन निकाल लिया, x से x कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में एक x बच गया, x टेंडिंग टू 0 के केस में 0। तो आपने देखा कि आप कोई भी पाथ लें, y is equal to mx लें, y is equal to mx square लें, y is equal to mx cube लें, y is equal to mx raised to the power n लें, whichever path you want to take, you just take, and you will get that the value of the limit is same for all the cases। It means the value of limit x tending to 0, y tending to 0, x square upon under root x square plus y square is 0। Am I correct or not? Yes sir। Yes, sir. Yeah. Yes, this limit is 0, the value of this limit is 0, and the value of this limit is not equal to RHS, because
the value of RHS is 2. And for continuity of any function, LHS must be equal to RHS. Limit, Sir, yes, sir, can you explain this part once more, sir? which part? Sir, this, sir, how RHS become 2, sir? RHS का वैल्यू कैसे आया? Yes, sir. आप देखिए RHS है f x नॉट y नॉट, मतलब f का वैल्यू गिवन पॉइंट पर, और हमारा जो गिवन पॉइंट है वो है ओरिजिन, मतलब 0 0। तो f का वैल्यू 0 0 पर क्या होगा? तो वो क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड है, when x is equal to 0, y is equal to 0, the value of the function is 2. That's why f at 0 0 is 2. So you can see the left hand side has the value 0 and the right hand side has the value 2. Since both are not equal, therefore the given function is not continuous at the origin. Since limit along any path is same, therefore limit exists, yes, of course, and value of the limit is 0 at the origin, of course. Now the value of the limit is not equal to the value of the function at the origin, which is 2. Therefore, function is not continuous at the origin. Any doubt in this part? Any doubt in this question? No, sir. So Sir. this is the, yes. सर यहाँ पे जो 3 तो केस है उसमें तो x का लिमिट पहले लेना है, उसके बाद y का ना सर, पहले x का और फिर y का है ना। आपने अभी लेट ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर, ये थोड़ा डाउट है इसमें। नहीं, मैं जब केस समझा रहा था तब आप थे क्लास में? सर ये थोड़ा लेट इशू है सर, इसलिए थोड़ा। मैं जो पूछ रहा हूँ पहले इसका जवाब दीजिए आप। मैं जब एक केसेस समझा रहा था तब आप क्लास में थे अभी, या आपने अभी लेट ज्वाइन किया? नहीं सर था, लेकिन ये लेट इशू है। ठीक है। देखिए केस नंबर 1 ये कहता है बेटा कि आप x का लिमिट पहले पुट कर दीजिए, उसके बाद में y का लिमिट पुट कीजिए, या पहले y का लिमिट पुट कर दीजिए, उसके बाद में x का लिमिट पुट कर दीजिए। ये केस नंबर 1 डायरेक्ट है एक्चुअली। केस नंबर 1 में कोई पाथ नहीं लिया है। वी आर नॉट टेकिंग एनी पाथ फॉर केस 1, बट फॉर केस 2 वी आर टेकिंग द पाथ y is equal to mx, and for case 3 we are taking the generalized path y is equal to mx raised to the power n. जो मतलब सर ये केसेस है वो केसेस फिक्स्ड है। हाँ नहीं, अगर 0 0 पे जा रहा है बेटा, ये डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल पॉइंट कहां पे जा रहा है, लिमिट कहां पे जा रही है। यहाँ पे जो वेरिएबल पॉइंट है या ये लिमिट है ये 0 0 पे जा रही है, इसलिए हम जो पाथ ले रहे हैं वो पाथ ओरिजिन से पास होने वाले जितने भी कर्व्स हैं वो ले रहे हैं। अगर मान लीजिए ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 y टेंडिंग टू 2 होती, तो मान लीजिए अगर ये लिमिट x टेंडिंग टू 2 y टेंडिंग टू 2 होती, ये मान लीजिए ये 0.22 है और ये पॉइंट x, y है, तो अगर x टेंडिंग टू 2 y टेंडिंग टू 2 है तो आपको वो पाथ लेने पड़ेंगे जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा हो, x टेंडिंग टू 2 y टेंडिंग टू 2। आप उस केस में y is equal to mx पाथ नहीं ले सकते, या y is equal to mx raised to the power n वाला पाथ नहीं ले सकते, because y is equal to mx path and y is equal to mx raised to the power n path is passing through origin. That's why we are taking these paths for this particular question only. If the limit is different, we have to take the different path. But in 99% cases, the question will be of x tending to 0, y tending to 0.
That's why I am taking these type of examples, these type of questions. ओके सर, इफ लिमिट अगर जैसे 2 अगर होता है तो उस केस में फिर पाथ वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पाथ देखिए आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन पाथ एक ले सकते हैं जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है 2, 2 एंड x, y से। y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। याद आया? यस सर। एक पाथ वो ले सकते हैं। दूसरा पाथ आप पैराबोला बना सकते हैं। 2, 2 और x, y से पास होने वाला जो पैराबोला होगा वो हो जाएगा y minus 2 whole square is equal to 4 times of x minus 2। ये भी ले सकते हैं आप। Is it clear? यस सर। मतलब So- जितना Yes, sir. पॉसिबल होगा सबका पाथ एक एक करके लेना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने आपको बताया 99% केसेस में क्वेश्चन x टेंडिंग टू 0 y टेंडिंग टू 0 वाला ही आता है। इसलिए आपको मैक्सिमम टाइम y is equal to mx या y is equal to mx raised to the power n वाला पाथ है। Is it correct, all of you? Any other doubt anybody wants to ask? Please ask. So if any case अगर हमारा मतलब x टेंडिंग टू y या फिर y टेंडिंग टू 0 कुछ भी मतलब हम लोग डाल रहे हैं और अगर एनी केस फंक्शन का वैल्यू इन्फिनिटी आए तो सर वो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फिर नहीं होगा सर? बेटा वो डिपेंड करता है ना। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होगा जब LHS RHS के इक्वल आए। अगर LHS में आप लिमिट फाइंड कर रहे हैं तो उस लिमिट का एग्जिस्ट करना जरूरी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में LHS में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और फिर उसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड का जो ओवरऑल वैल्यू है वो 0 है और राइट हैंड साइड का ओवरऑल वैल्यू है 2। So 0 is not equal to 2. LHS is not equal to RHS. That's why this function is not continuous. तो वो डिपेंड करता है कि वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। Is it clear? ओके हाँ Yes. और कोई पूछना जाएगा? देखिए मुझे आज नया टॉपिक स्टार्ट करना था, आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया। अब मैं नया टॉपिक कैसे स्टार्ट करूंगा? अगर मैं अभी नया टॉपिक स्टार्ट कर दूंगा तो हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आप लोग लेट ज्वाइन पिछले वाले क्लास में भैया प्रेजेंट कर रहे थे वो कुछ सर आज एक्चुअली सीनियर्स भैया लोग प्रेजेंट कर रहे थे टेक फेस्ट के रिगार्डिंग। आई नो मुझे पता है आपकी क्लास आपके क्लासमेट से मुझे ये बात बता दी, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी। 2 बातें आपको समझनी होगी। सबसे पहली बात तो ये कि अगर क्लास के बिगिनिंग में आपके सीनियर्स अनाउंसमेंट करने आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास एनफ टाइम होता है, वो आराम से अनाउंसमेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई क्लास एंड होने वाली है और उसके बाद में वो उस टाइम पे वो आते हैं तो नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको पुरानी वाली क्लास को टाइम पे छोड़ना ही पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नेक्स्ट क्लास का टीचर आपका कितना वेट करेगा ये बताइए मुझे आप। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर यस सर। जैसे लास्ट क्लास में सीनियर्स जब आए थे आपके तो मेरी क्लास स्टार्ट हुई थी, उस टाइम वो सीनियर्स आ गए थे और मैंने उनको सफिशिएंट टाइम दे दिया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और नेक्स्ट क्लास के टीचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मैंने नेक्स्ट क्लास से पहले ही आपको छोड़ दिया था टाइम भी। याद है? यस सर। यस। लेकिन Yes, sir. अब अभी मैं आपका वेट कर रहा हूं, आपके जो क्लासमेट्स हैं वो आपका वेट कर रहे हैं, हम लोगों का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। इस केस में कभी भी ऐसा हो तो आप अपने सीनियर से उसी टाइम रिक्वेस्ट कीजिए कि सर प्लीज हमें लेफ्ट करने के लिए परमिशन दीजिए क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लास के टीचर हमारा वेट कर रहे हैं। अगर वो परमिशन नहीं देते हैं आपके सीनियर्स तो आप लेफ्ट हो जाइए क्लास को, बिकॉज क्लास से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।
Is it clear? Yes. Yes, sir. So keep in mind, Yes, sir. always punctual. चलिए, कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर मैं क्लास को लेफ्ट करता हूँ, क्योंकि आज नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग. Anybody wants to say something or anybody wants to ask something, please ask. नयन शर्मा इज आस्किंग, सर इस साल कॉलेज नहीं खुली तो फर्स्ट ईयर वाले प्रमोट होंगे? नयन, आपके मिड टर्म हो रहे हैं, हर एक मिड टर्म होगा, आपकी क्लासेस हो रही है, आपके एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, तो फिर प्रमोट कहां से हो गए फ्री फंड में? अगर आप पास होते हो तो पास होंगे, अगर आप फेल हो गए तो फेल हो गए. इसमें प्रमोट होने की बात कहां से आ गई नयन? Radha Krishna is asking when we will get to see the exam paper. Radha Krishna, beta, I have already uploaded the marks in the Google Sheet, and I have given these marks to examination cell as well, and hopefully within 1 or 2 days they will publish. Okay, Radha Krishna? And after publishing the marks, आप मार्क्स देखिए. इफ यू हैव एनी कंसर्न अबाउट इट, देन आई विल शो द नोटबुक, I will show the answer sheet where you are wrong, where you are right, if you have any concern. Otherwise not, because this is online, this is not offline. तो जैसे सर हम एक न्यू स्टूडेंट है सर, आज फर्स्ट क्लास किए तो उस केस में सर बहुत कुछ छूट गया है. कौन, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? शिवम गोड़ीसरिया. Okay, have you logged in the Google Classroom app, Shivam? Yes, I have just logged in today itself. Maths class, BSc 103. No, I have not opened it. I have opened one physics class. हाँ, देखिए अलग अलग क्लास का अलग अलग होता है. मैं आपको यहाँ पे गूगल क्लासरूम लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है? आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसमें सीक्वेंस में टॉपिक वाइज हर चीज अवेलेबल है. क्लास नोट्स अवेलेबल है, क्लास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, असाइनमेंट्स अवेलेबल है, सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट अवेलेबल है, सिलेबस वगैरह सब अवेलेबल है. अभी आप न्यू स्टूडेंट्स जो हैं, अभी बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारा मटेरियल छूट गया है. Yes, सो sir. डोंट वरी अबाउट दैट. अभी आप सिर्फ मिड टर्म में जो 5 टॉपिक्स आएंगे, उन 5 टॉपिक्स के क्लास नोट्स एक बार ऐसे ही देख लीजिए, क्योंकि आपका मिड टर्म बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही स्ट्रेट होगा. और जब आपको फिर बाद में टाइम मिले वेकेशंस में, तब आप लोग मेरी क्लास रिकॉर्डिंग से गो थ्रू हो जाइए, और जब क्लास रिकॉर्डिंग्स आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी. ओके शिवम? Okay, sir. I am sharing the code. This is the Google Classroom code of mathematics class. Okay, sir. और मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ आपसे. जस्ट अ सेकेंड. या फिर आप ये लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं. Yes, sir. Okay, sir. सुहासनी, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी. यू आर ऑल्सो न्यू स्टूडेंट हियर. सर वो मिड टर्म्स में सर जो टॉपिक्स है वो सर फुल शेड्यूल वो देखिए, टॉपिक्स जो मिड टर्म्स के होंगे वो 5 टॉपिक हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए. उनमें से मैक्सिमम पार्ट आपका 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड उनको पढ़िएगा. अभी कंसेप्ट में मत जाइएगा. Okay, sir. जब आपको वेकेशंस मिलेगी, तब आप जब क्लास रिकॉर्डिंग्स को सुनेंगे, तब आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएंगे. अभी सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड पढ़िएगा, क्योंकि मिड टर्म में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे आप लोगों के लिए. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. देयर विल बी 5 टॉपिक्स ओनली. प्लीज नोट इट डाउन. नंबर 1, एलोपिटल रूल. मैं यहाँ पे देखिए शो कर देता हूं. आई एम प्रेजेंटिंग द स्क्रीन.
This Google Classroom is visible to everyone or not? No, sir. Not yet. No, sir. I think now visible, right? Yes, sir. Yes, तो sir. देखिए आपके जो there will be 5 topics in your midterm examination. Number 1, partial differentiation, homogeneous functions. Number 1, this partial differentiation, homogeneous functions based on Euler's theorem. Number 2, partial differentiation only. Number 3, maxima and minima of single variable. Number 4, L'Hopital rule. And number 5, Rolle's and Lagrange's mean value theorems. Rolle's and Lagrange's mean value theorems. तो आपको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करनी है मिडटर्म में, क्योंकि आपकी लेट ज्वाइनिंग्स हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं ये एक बार देख लीजिएगा, आप लोग क्लास नोट्स में देख लीजिएगा या रिकॉर्डिंग्स में देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग्स का तो टाइम नहीं मिलेगा, क्लास नोट्स में देख लीजिएगा, और कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके सर। राइट? एक्सक्यूज मी सर। यस प्लीज। सर मिड टर्म कब होगा? आई एम ऑल्सो न्यू स्टूडेंट टुडे। मिड टर्म है 14, 15, 16 अक्टूबर। Oh, okay, 14, 15, 16 अक्टूबर। डेट शीट will come definitely। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए या नहीं किया है तो। Okay? नहीं सर, कर लिया सर। Okay, सर। okay, thank you very much all of you, have a good day, thank you। Thank you, sir. Thank you, sir.